Yes, my dear all, I am starting a poem, Dust of Snow. Poet name is Robert Frost. You can read the poet also, actually on your screen. It is showing. So first you have to read the poem so that you can understand the poem and what is saying poet through this poem. Poem is here. The way a crow should dawn on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some parts of a day I had trod. You have to know about the meaning also. You can note down if you are not able to understand. Okay, and you should learn also the meaning of the words. Okay, now in glossary, words are first word is hemlock, a poisonous plant tree with small white flowers. Now you have known hemlock is a type of trees, okay, and it is a poisonous tree. And if I'm talking about size, then plant is in big size, not very big size, but having a small white flowers. Root held in regret. Okay, and you know very well crow is crow means a bird name. Crow means kowa. Okay, and poem name is Dust of Snow, and poet is Robert Frost. Now you all have to know about the summary, theme, message, points of the poem. Okay, so we continue. Dust of Snow is a awful poem of nature by Robert Frost. Not Robert Frosty, Robert Frost. In this poem, a symbolic incident is present. The poet is standing under a hemlock tree. He is in a sad mood. That means it's very clear poet's mood is not so good. Okay? So he is in a sad mood. He thinks that his day has been lost. वो ऐसा सोचता है, उनका मूड भी अच्छा नहीं है, और पोएट यही सोचता है उनका पूरा दिन बेकार चला जाएगा. ओके, एंड देन होता क्या है? A crow shakes the hemlock tree and the dust of snow falls on him. This little incident brings about a sudden change in the state of the poet's mind. His mood has changed. He thinks that it has saved the rest of his day and gets busy with his work like the crow. एक्चुअली जब पोएट का मूड ऑफ था तो वो यही सोचता था उनका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो डे का सही यूटिलाइज नहीं कर पाएगा. बट जैसे ही वह हेमलॉक ट्री के अंदर जाता है, नीचे जाता है, वैसे ही क्रॉ के द्वारा हेमलॉक ट्री को जैसे ही क्रॉ उस पर बैठा रहता है तो ऊपर से स्नो का डस्ट गिरता है पोएट के ऊपर और उनका मूड बिल्कुल बदल जाता है. और मज़े की बात यह है कि पोएट अब ये सोच रहा है कि उनकी दिन जो बेकार जाने वाली थी, जो यूटिलाइज नहीं हो पाता, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. एंड ही थिंक्स दैट इट हैज सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे एंड गेट्स बिजी विथ हिज वर्क. और वो अपने काम में बिजी हो जाता है और वो अपने टाइम को ये सोचता है कि मेरे यहाँ आने से पहले बाद अब मैं अपने डे को बचा लिया. बिकॉज सोचने वाली बात है, आगे आप बिल्कुल जानोगे कि हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है जहाँ आशाएं पूरी खत्म हो जाती है. क्रॉ भी एक बर्ड है जहाँ पर आशाएं बहुत ही कम रहती है. अब आगे क्या बताता है पोएट आपको इस पोएम के थ्रू. फ्लेक्स ऑफ स्नो. You have to know about the flakes of snow. It was a day of winter. Now, we'll know in detail. Here is summary, but you can understand each and every lines, and you can understand the entire poem
आप पोएम को बहुत अच्छे से समझ पाओगे. यू ऑल हैव टू बी कंटिन्यू. आप लास्ट तक वीडियो को देखो, बिल्कुल पूरी समझ में आएगी. इट वॉज अ डे ऑफ विंटर. इट वॉज स्नोइंग ऑल अराउंड. अ फाइन डस्ट ऑफ स्नो हैड कवर्ड द टॉप्स ऑफ द ट्रीज. अ हेमलॉक ट्री वॉज स्टैंडिंग देयर. The top of the hemlock tree was all covered with the fine dust of snow. The poet was standing under the hemlock tree. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सब जगह पूरे के पूरे एरिया एंड ट्रीज जो थे वह स्नो से कवर हो गई थी, ढकी हुई थी. एंड जैसे ही पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा होता है तब क्या होता है, आपको मैंने बताया. नो नेक्स्ट यू हैव टू नो सडन अराइवल ऑफ क्रो. Arrival of a crow, falling of snow dust on poet. हेमलॉक ट्री के नीचे पोएट रहता है एंड जब क्रो वहाँ पहुँचता है देन सडनली क्या होता है, अ क्रो फ्रॉम nowhere came and perched on the top of the tree. The sudden movement of the crow made the dust of snow fall down. The flakes of snow fell on the poet who was standing under that tree. उस ट्री के नीचे, उस हेमलॉक ट्री के नीचे पोएट जो खड़े रहते हैं उनके ऊपर, उनके शोल्डर के ऊपर, उनके बॉडी के ऊपर जैसी डस्ट ऑफ स्नो गिरता है एंड ड्यू टू क्रो, ओके, बर्ड के कारण उनका मूड बिल्कुल बदल जाता है. नाउ नेक्स्ट, सिंपल नेचुरल हैपनिंग क्या होता है. The arrival of a crow and its sitting on a hemlock tree is just an ordinary happening. कुछ साधारण चीज होता है नहीं, असाधारण हो जाता है. बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है जिनकी आशाएं भी नहीं रहती है. There is nothing great about the incident. On the other hand, the crow stands for an ill omen, and hemlock, the tree, is associated with poison. आप खुद जानते हो कौवा जो होती है, कौवा जो बर्ड है, वो बर्ड को लोग ऐसे भी बहुत पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ अच्छी लगती है, वो दिखने में अच्छी लगती है तो पसंद ना करते हैं. और हेमलॉक ट्री की बात करूं तो बिल्कुल आपको मैंने पहले भी बता दिया कि हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, एक जहरीला ट्री है. बट दिस सीमिंगली simple things of nature leave a deep impact on the mind and mood of the poet. इतना होने के बावजूद भी पोएट के मूड और माइंड को बिल्कुल बदल देता है. ओके, किस तरह बदला? चेंज इन द मूड. दिस ऑर्डिनरी इंसिडेंट leaves a deep impact on the poet. So far it has been a very dull and disappointing day for the poet. जाने वाला था, बेकार के दिन गुजरने वाला था. The day has not gone well for him. But the falling of the flakes and dust of snow on him are welcome signs for the poets. लेकिन जैसे ही स्नो का डस्ट उनके ऊपर गिरा, उनको ऐसा महसूस होने लगा कि कुछ अब अच्छा होने वाला है. उनको, पोएट को अब ये होने लगा कि उनकी जो बादमा की जो दिन है, रिमेनिंग डे जो बची हुई डे है, वो बिल्कुल उनका बहुत अच्छा गुजरने वाला है, यानी बेकार जाने वाला नहीं है. ओके, हिज मूड चेंजेस फॉर द बेटर एंड हिज स्पिरिट्स आर अपलिफ्टेड. नाउ ही रियलाइजेस दैट द होल डे हैज नॉट गॉन वेस्ट. दोज मोमेंट्स while he is enjoying the fall of snow dust on him are his happy moments. They lift up his mood and gladden his heart. वह अपने आप से बहुत ही खुश हो जाता है और वह इस बात से खुश हो जाता है उनकी जो दिन, जो डे वेस्ट होने वाला था, अब वो वेस्ट होने से बच गया. लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो बचा वो किसके कारण बच गया, उनका डे सही यूटिलाइज हुआ स्नो फॉलिंग के कारण. और स्नो फॉलिंग कहाँ हुआ? पॉइजनस ट्री के नीचे. और वह स्नो फॉलिंग क्यों हुआ? क्योंकि वह पॉइजनस ट्री जो था, हेमलॉक ट्री, उसके ऊपर में एक बर्ड बैठा और वह बर्ड था अ क्रो. ओके, नाउ ही रियलाइजेस दैट एट लीस्ट सम पार्ट
of the day has been spent happily. और मैं यही बातों को लेकर खुश हो गया कि मेरी बची हुई दिन बहुत ही अच्छे से जाएगी. In the end, satisfaction replaces regret. Okay? So you all can keep in your mind simple way, and whenever any questions will be asked from this poem, hope you can answer very well. Thank you so much. और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें.